Today we start aromatic acids. Introduction. First is introduction. The aromatic acids are the derivatives of aromatic hydrocarbons in which one or more hydrogen atoms have been replaced by the carboxylic group. Aromatic acids क्या होते हैं? Aromatic acids वो acids होते हैं जिसमें जो ये डेरिवेटिव्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से. इसमें क्या होता है कि एक वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस किया जाता है विद carboxylic group, that is COOH group. The carboxylic group may be directly attached to the aromatic acid aromatic nucleus and is known as benzoic acid. When carboxylic group, that is COOH group, directly attached to the benzene, that is aromatic nucleus, उसे कहते हैं हम benzoic acid. When sometimes carboxylic acid is present in the side chain of the aromatic nucleus, अगर वो directly attached नहीं हो, like this COH is directly attached to the benzene, it is known as benzoic acid. When it is not directly attached, it is present in the side chain of the aromatic nucleus, उसे कहते हैं, like for example phenyl acetic acid. In this carboxylic group is present in the side chain present, and this side chain is directly attached to the benzene ring or aromatic nucleus, not the carboxylic group attached to the directly to the aromatic nucleus. When carboxylic group directly attached to the aromatic nucleus, it is known as benzoic acid. When it is present in the side chain, it is known as this one, that is phenyl acetic acid. Next one is the methods of preparation. Aromatic acids can be prepared by following general methods. First one is Friedel-Crafts reaction. In this, when benzene is reacted with carbonyl chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride, it gives acid chloride, and when acid chloride, which on further treatment with water gives the corresponding acid. In this way, the benzoic acid is prepared from benzene. In this, इसमें क्या हो रहा है कि जब इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये प्रिपेयर हो रहा है फ्रॉम बेंजीन, C6H6 is benzene. When benzene को हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड के इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स एसिड क्लोराइड. अब जब हम एसिड क्लोराइड को फर्दर ट्रीट कराते हैं विद वाटर, इट गिव्स benzoic acid. In this way, benzoic acid is prepared from benzene and it is known as Friedel-Crafts reaction. Next one is Sandmeyer's reaction. Aniline. In this, in the previous reaction, the benzoic acid is prepared from benzene, but in this Sandmeyer's reaction, it is prepared from aniline. Aniline is the NH2 is directly attached to the benzene. It is known as aniline. Aniline on diazotization gives benzene diazonium chloride, which on reaction with the CuCN copper cyanide give product benzonitrile, which on further treatment with water gives the benzoic acid. In this, इसमें क्या होता है कि जब NH2 डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग को, इसे कहते हैं हम एनालिन. जब इसकी डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है कि जो डायजोनियम क्लोराइड है, इट गिव्स डायजोनियम क्लोराइड. NH2 डायजोटाइज्ड होके डायजोनियम क्लोराइड में चेंज हो गया. व्हेन डायजोनियम क्लोराइड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन, इट इज नोन एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, व्हिच ऑन रिएक्शन विद कॉपर साइनाइड, जब इसकी कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है, इट गिव्स बेंजोनाइट्राइल. एंड बेंजोनाइट्राइल को हम फर्दर ट्रीट कराते हैं विद वाटर, इट गिव्स आवर मेन प्रोडक्ट, दैट इज बेंजोइक acid. Benzoic acid is prepared from the aniline, is known as Sandmeyer's reaction. जब benzoic acid aniline से prepare होता है with the diazotization reaction, उसे कहते हैं हम Sandmeyer reactions. In Friedel-Crafts reaction, benzene से वो prepare हुआ था from benzene. Benzoic acid is prepared from benzene, but in this benzoic acid is prepared from the aniline. Next one is the acidic nature of aromatic acid. The substance which gives H positive in their
aqueous solution are termed as acid. As we all know कि जो aqueous solution में जो सब्सटेंस अपने प्रोटॉन्स रिलीज या फिर गिव प्रोटॉन देती हैं उसे कहते हैं हम एसिड्स. द एरोमेटिक एसिड्स आयनाइज इन देयर aqueous solution to give हाइड्रोनियम आयन. जब एरोमेटिक एसिड्स आयनाइज होते हैं इन aqueous solution it gives hydronium ions. That's why they in the COH group attached to the benzene ring. In this, the COH group H positive ions is released from H positive is released into in a form of hydronium ions. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है कि जो COH ग्रुप है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया. इसमें क्या हुआ कि जो H पॉजिटिव आयंस हैं उसने क्या किया, अपने H पॉजिटिव रिलीज किए एक्वस सोल्यूशन में. ये क्या हुआ, H पॉजिटिव उसने वाटर को दे दिए. इट गिव्स hydronium ion. That's why aromatic acid ionize in the aqueous solution to give hydronium ions. यहाँ उसने अपने H positive aqueous solution को दे दिया. It means वो acid है. यहाँ से हमें ये पता चला कि वो एसिड है क्योंकि उसने जब इसमें हमने उसे वाटर में डाला तो इसने अपने H पॉजिटिव H2O को गेट किया एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोनियम आयन. The resonance stabilization by the aromatic pi molecule play a major role in the relative acidity of benzoic acid. However, this is not so. कहते हैं कि जो resonance stabilization है aromatic molecular orbital की वो major role play करती है in the relative acidity of benzoic acid. In the negative charge of carboxylate ion, जो negative charge है carboxylate ion का is shared by two carboxylate oxygen atom but cannot be effectively delocalized by the aromatic ring. हमें पीछे से ये तो पता चला गया कि वो एसिड है क्योंकि उसने अपने H पॉजिटिव अपने एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज कर दी या फिर अपने H पॉजिटिव वाटर को दे दिए और इट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोनियम आयंस एंड कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इट इज अ वीक एसिड, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? तो ये कह रहा है कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है बाय द एरोमेटिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो मेजर रोल प्ले कर रही है इन द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड. फर्स्ट वन इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन. ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन का वो शेयर्ड हो रहा है विद बाय द टू कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन एटम की. उसमें रेजोनेंस आ रही है सिर्फ इन्हीं में, इनकी जो नेगेटिव आयन्स है वो दो ऑक्सीजन एटम्स में ही delocalized हो रहा है but cannot be effectively delocalized by the aromatic ring. वो जो नेगेटिव आयन है वो इफेक्टिवली पूरी एरोमेटिक रिंग में नहीं गया, बल्कि उसकी डीलोकलाइजेशन इस एरोमेटिक रिंग में नहीं हुई. इस वजह से this is because the oxygen of the carboxylate anion are not directly adjacent to the aromatic ring. Resonance structures cannot be drawn. अब अगर क्योंकि ये इसमें क्यों नहीं हुआ, अब देखो कि जब नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन का वो दो ही कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन में ही शेयर हो रहा है बट कैन नॉट बी इफेक्टिवली डीलोकलाइज बाय द एरोमेटिक. वो एरोमेटिक रिंग में डीलोकलाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब जो O नेगेटिव अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता, देखिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ना, अगर ये O नेगेटिव डायरेक्टली अटैच्ड होता इस बेंजीन रिंग के साथ तब उसमें क्या होता, तब उसमें कार्बोक्सिलेट आयन नॉट directly attached to the aromatic ring. Resonance structures cannot be drawn because the benzene ring does not participate in the resonance stabilization of the carboxylate group. Substituents on a benzene ring influence the acidity. ठीक है. अब बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में. अब क्या होगा कि जब सब्स्टिट्यूएंट आएंगे बेंजीन रिंग के ऊपर वो उसकी एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे. लाइक कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, लाइक एनीवन. ठीक है. तो इस वजह से इसकी एसिडिटी कम होती है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है
दो कार्बोक्सिलेट आयन का वो शेयर्ड होता है सिर्फ कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन एटम्स में, वो इफेक्टिवली डीलोकलाइज नहीं होता एरोमेटिक रिंग में। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट एनाइन की वो डायरेक्टली अटैच नहीं है एरोमेटिक रिंग के ऊपर, वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस वजह से उसके कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। अब बेंजीन पार्टिसिपेट नहीं कर रही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में, तो उसमें जो जो उस पर सब्सिट्यूएंट ऐड होंगे वो उसकी एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो उसकी एसिडिटी उसके उसके ऊपर डिपेंड होगी कि किस टाइप का हमें सब्सिट्यूएंट अटैच्ड है बेंजीन रिंग के ऊपर। नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट्स on acidity of aromatic acid. First one, two types of substituents mainly affect the acidity of aromatic acid. First one is electron releasing group. Second one is electron withdrawing group. First one is electron withdrawing group like CN, CHO, NO2, etc. Increase the acidic strength of aromatic acid. वो increase करते हैं acidic strength of aromatic acid. Why it is that? This is due to fact that electron withdrawing group tend to stabilize the carboxylate ion by dispersing the negative charge on the carboxylate ion. इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, टेंड टू स्टेबलाइज, वो स्टेबलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को बाय डिस्पर्सिंग, मतलब कि बाय डीलोकलाइज्ड द नेगेटिव चार्ज ऑन द carboxylate ion. As a result, such group increase the acid strength of substituted aromatic acid. इस वजह से इसकी acid strength increase होती है due to electron withdrawing group like this. अब देखो, अब NO2 that is electron withdrawing group, when it is electron, ये अपने electron withdraw करेंगे, मतलब कि अपनी तरफ को लेंगे, मतलब कि अपनी तरफ को खींचेंगे इसे। तो इसका क्या है कि जो नेगेटिव जो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयंस है वो डिस्पर्स होगा थ्रू आउट द रिंग, और इसकी वजह से वो क्या होगा, वो टेंड टू स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसकी वजह से वो उस कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेगा। एज ए रिजल्ट इस वजह से इसकी एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप like CH3OH NH2 decrease the electron acidic strength of the aromatic acid. This is due to the fact that electron releasing group tend to destabilize, बल्कि वो destabilize कर देते हैं carboxylate ion by intensifying the negative charge on carboxylate ion. वो नेगेटिव चार्ज जो कि कार्बोक्सिलेट आयन पे प्रेजेंट है उसे इंटेंसिफाई कर देते हैं, बट इन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वो डिस्पर्स करते हैं नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डीस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, और इस वजह से वो क्या करते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। एंड दिस विल द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप destabilize the anion and acidic strength decreases because it intensify the negative charge that is present on the carboxylate ion. ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये इंटेंसिफाई करते हैं, बट इन द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इट डिस्पर्सेस द नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं कोई भी बेंजोइक एसिड के ऊपर की सब्स्टिट्यूएंट, व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन द व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेंजोइक एसिड, it stabilize the carboxylate ion by dispersing the negative charge. वो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्ज करके उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, और इस वजह से जब उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाती है इट मीन्स वो क्या कहते हैं, उसकी एसिड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर देते हैं, बट इन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, बिकॉज कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करता है, वो डिस्टेबलाइज कर देता है कार्बोक्साइड को। वाई destabilize? Because वो इंटेंसिव, वो जो नेगेटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन उसे इंटेंसिफाई कर देती है, इसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है।